Dear students, welcome in DSCJ online classes. I am Amol Sharma, your chemistry teacher, and today we will start the very first lesson of your chemistry, and the name of this lesson is Chemical Reactions and Equations. Now students, before starting this lesson, let us first study about physical and chemical changes. Now students, you might have studied the physical and chemical changes in your earlier classes. So let us just revise it again. Physical changes are those changes which involve the change only in their physical properties. No chemical composition is changed. So the changes in which only the physical appearance of a substance is changed, such changes are called as physical changes. The properties, chemical properties of the substance remain same. Now for example, melting of ice. So ice is solid state and on melting it converts into liquid state. There is change in the state of matter, but chemical composition remains same. In solid state, in the ice form of ice, it is H2O. When it is melted to liquid, its chemical composition remains same. It is again H2O. And when liquid water is heated, it is converted into vapors. It is converted into gaseous state. Again, the chemical composition remains same. That is H2O. So there is only in the change of state of matter, but the chemical composition remains same. So such changes in which only the physical appearance of a substance change are called as physical changes. While on the other hand, the changes in which new substance with new properties are formed, such changes are called as chemical changes. So in the processes in which the original substance lose their nature and identity and form a new substance with different properties are called as chemical changes. So the properties of the new substance are totally different from the properties of original substance. These chemical changes are mostly permanent changes. These are irreversible changes. Now, for example, curdling of milk. So the properties of curd are totally different from that of the milk. Burning of paper. So the properties of paper before combustion and after combustion are different. Respiration means oxidation of food to release energy. So food on oxidation form energy molecules. So the properties of those energy molecules are different from that of the food. So in these changes, the chemical properties change. So such changes in which chemical properties of a substance change, resulting in the formation of a new substance, are called as chemical changes. Now, the chemical reaction and the process involved in a chemical change is called as chemical reaction. कि जिस process जो process involve हुआ chemical change में उसे हम क्या कहेंगे chemical reaction. So chemical reaction, a process in which one or more substance, the reactants, are converted to one or more different substances, the products. Means the substance which starts the reaction are called as reactants, and the substance which are formed as a result of chemical reaction are called as the products. So new substance, that is products, are formed in a chemical reaction. So the properties of product are totally different from that of the reactants. Now students, actually in a chemical reaction there is the rearrangement of atoms of the reactants. कि atoms जो हैं reactants के, जो reactant के जो molecules हैं उनके atoms rearrange होके एक नया molecule बना लेते हैं. तो rearrangement की वजह से जो products की properties हैं वो क्या होती हैं, reactant से different होती हैं. अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन की अगर हम बात करें, इट इज सिंपल आयरन Fe और इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रे. What when it is exposed to moist air, it reacts with oxygen and water vapors present in air to form rust, Fe2O3, ferric oxide. And the properties of rust are different from that of the iron. So it is a chemical change. It is a chemical reaction. Similarly, respiration. It is the oxidation of food. Food on being oxidized form energy molecule. So properties of the energy molecule are different from that of the food. So again, it is a chemical change. It is a chemical reaction. So chemical reaction mean
द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। सो जो सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ओरिजिनल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो whenever there is a chemical reaction, some common observable things are there, some observable characteristics are there which are called as the characteristics of a chemical reaction। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें ये चेंज आई है, तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं किसी को कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे। So the easily observable changes that take place in a chemical reaction are called as characteristics of a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमनली ऑब्जर्व हैं, वेरी फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। So during some chemical reaction, some gas may be evolved, some gas may be formed। So formation of gas or evolution of gas is also one of the characteristics of the chemical reaction। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है जिसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक का मेटल लिया है और साथ में क्या है, हमने उसमें ऐड किया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। सो जिंक मेटल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक सॉलिड आ गया, एक लिक्विड आ गया। तो जब इन्होंने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, आप दूसरे कंटेनर में बबल्स देख सकते हो। सो दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये बबल्स कहां से आए, क्योंकि हमने तो गैस पहले नहीं लिया था, वहां क्या था, सॉलिड और लिक्विड था। सो हाइड्रोजन गैस जो है वो बनी है। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस। सो इट इज आल्सो द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके लैब एक्टिविटी में भी ये यूज होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो हाइड्रोजन गैस को आपने याद रखना है कि टेस्ट एक बड़ा कॉमन टेस्ट है हाइड्रोजन गैस के लिए, वो क्या है, पॉप साउंड टेस्ट। कि when we bring a burning matchstick near hydrogen gas, near a gas, if it produce a pop sound, अगर पॉपिंग साउंड ऐसे पॉप इस तरह से अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो then that gas is hydrogen gas। So you can test the hydrogen gas by burning a matchstick near it। If it produces pop sound, then it is a hydrogen gas। तो यहाँ पे जो है वो गैस इवॉल्व हो रही है। ऐसे ही आप कॉमनली भी देख सकते हो कि जैसे कोई मोटर व्हीकल है, पेट्रोलियम जल रहा है या जो डीजल जलता है तो गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम गैसेस में बी फॉर्म्ड। देन another characteristic is there, that is the formation of precipitate। Now what are precipitates? Precipitates are insoluble substances formed during the reaction। कि हमारे पास कुछ soluble substances थे, हमने उसे मिक्स किया, लेकिन हमें क्या मिला, एक insoluble substance। So in some reactions, insoluble substance called as precipitate may be formed during the reaction। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले लेते हैं बिटवीन द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। So lead nitrate is soluble in water, and we have taken another solution, that is potassium iodide। So potassium iodide का solution, potassium iodide is also soluble in water। So lead nitrate is soluble in water, potassium iodide is soluble in water। When we mix them, an insoluble substance is formed। वो insoluble substance क्या था, lead iodide। वो ये येलो कलर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो कि येलो कलर का सब्सटेंस एक बन रहा है। सो दो सॉल्युबल सब्सटेंस हमने मिक्स किए और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। सो दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट। सो इन सम केमिकल रिएक्शन देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ precipitates, there may be the formation of some insoluble substance। Then change in color। So some chemical reactions are accompanied by change in color। So there may be change in color during the chemical reaction। जैसे अभी हमने एग्जांपल एक ली लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन की। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि एक बीकर में हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, इट इज कलरलेस। दूसरे में हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, अगेन इट इज कलरलेस। बट ऑन मिक्सिंग देम अ येलो कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दैट येलो कलर्ड सब्सटेंस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। मतलब कहने का क्या है कि हमने दो कलरलेस सब्सटेंस को मिक्स किया, केमिकल रिएक्शन हो गई और कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। So in some chemical reactions there may be change in color। So colorless solution को हमने मिक्स किया और येलो कलर का precipitate मिला। So some chemical reactions are accompanied by change in color। Then change in state। So some chemical changes are also characterized with change in state। कि state change भी हो सकती है, solid से gas भी बन सकते हैं, solid से liquid भी बनते हैं।
जैसे आप कॉमनली अगर हम देखें तो पेट्रोलियम को हम जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जैसे पेट्रोल या डीजल को, लिक्विड से वो क्या बन जाते हैं, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल सूट भी वहां पे रिलीज होती है। सो देयर इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ऐसे आप सॉलिड वैक्स से कैंडल को जलाते हैं तो जलने पे क्या है, वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं गैसेस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अगेन इट इज ए गैसेस फॉर्म। सो सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। सो देयर मे बी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। And the next characteristic is the change in temperature. So some chemical changes are accompanied by a change in temperature. So there may be change in temperature कि temperature भी जो है वो substances का वहां reaction के दौरान change हो सकता है, temperature बढ़ भी सकता है और temperature decrease भी कर सकता है। अगर हम बात करें कि कुछ reactions में temperature क्या करता है, decrease कर जाता है। So reactions which involve the rise in temperature are those in which heat is evolved are called as exothermic reaction. So कुछ reactions में heat evolve होगी, heat release होगी, exo mean release, thermic mean heat यानी कि energy। तो जिन reactions में heat release होती है तो ऐसी reactions को हम क्या कहते हैं, exothermic reaction। So heat release होने की वजह से temperature क्या कर जाता है, increase कर जाता है। तो इसके लिए बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने भी देखी होगी कि ड्यूरिंग व्हाइट वॉश जब हम क्विक लाइम को, चूना जिसे हम कहते हैं, उसे हम पानी में ऐड करते हैं तो इट फॉर्म्स स्लेक्ट लाइम, लाइम वाटर बन जाता है और उस कंटेनर का जिसमें हमने उसे ऐड किया है वो भी गर्म हो जाता है बिकॉज देयर इज द रिलीज ऑफ हीट। तो ऐसे ही अगर हम एक ग्लास बीकर लेते हैं, उसमें हमने वाटर लिया हुआ है और अगर उसमें हम क्विक लाइम डालते हैं तो वो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा, क्योंकि उस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है। सो हीट रिलीज हुई है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो देयर इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। So some reactions involve the increase in temperature and such reactions are called as exothermic reactions. Then some reactions are accompanied by fall in temperature कि कुछ chemical reactions में temperature जो है वो decrease भी कर सकता है। तो टेम्परेचर अगर हीट को, वो रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मीन एब्जॉर्ब, थर्मिक मीन हीट। सो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो देयर इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड में इन ए टेस्ट ट्यूब, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया हमने, उसे अमोनियम क्लोराइड में ऐड किया तो ऑन टचिंग द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इट इज फाउंड टू बी कूलर, कि ये ठंडी महसूस होगी। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया कि क्विक लाइम को वाटर में जब हमने ऐड किया एक बीकर में तो बीकर गर्म हो गया था, देयर वाज अ रिलीज इन हीट, तो दैट वाज अ एक्सोथर्मिक। लेकिन जहां पे हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया अमोनियम क्लोराइड में तो बीकर क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो दिस इज एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट, सच रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज किया है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो नॉर्मली 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां से ये -25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब कि ये मिक्सचर जम ही जाएगा बिल्कुल आइस की फॉर्म में। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो इनमें से अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो ये दो चेंजेस भी आ सकती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे अगर हम लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट्स भी बने और चेंज इन कलर भी हुआ। सो द केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, इसमें से कोई एक सिंगल चेंज भी आ सकती है या दो से ज्यादा चेंजेस भी आ सकती हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Now our next part is chemical equations. अब chemical equation क्या होती हैं? It is the shorthand representation of a chemical reaction. कि अगर हम chemical reaction को shorthand form में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, chemical equation. एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि जैसे जिंक रिएक्ट्स विद sulfuric acid, it forms zinc sulfate and
हाइड्रोजन गैस। ये हमने एक रिएक्शन लिख ली, एक प्रोसेस लिख लिया कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो अगर हम इसको लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म विच इज गिवन बाय एरो, तो क्या बना हमारे पास, जिंक सल्फेट, और साथ में हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। सो सच इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। तो हमने इनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा, तो ये क्या हो गया, हमारे पास वर्ड इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर मैं जिंक की जगह पे लिखता हूं Zn, सिंबल ऑफ जिंक, देन सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, और हमें मिला क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। गैस को हम डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से। जिंक को मैंने लिख लिया, जिंक का सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, ऐसे ही जिंक सल्फेट का फार्मूला और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पूरा नाम लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे सिंबल्स और फार्मूले यूज किए जो कि उन सब्सटेंसेस के, उन एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व थे। So this symbolic representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulae of the substance involved is called as the chemical equation. कि केमिकल रिएक्शन की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर हम वर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इट इज द वर्ड इक्वेशन, और अगर हम सिंबल्स और फार्मूले लिख रहे हैं तो कॉमनली इट इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अब हम उसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। So the substance which starts the reaction are called as reactants, and the substance which are formed as a result of reaction are called as products. और केमिकल इक्वेशन, एक्चुअल में जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। कि सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने अभी देखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन को अगर हमें लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आपको क्या लिखना है, रिएक्टेंट्स के सिंबल और फार्मूले। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल इक्वेशन के कहाँ पे होने चाहिए, राइट साइड पे। एक एरो हम बीच में लगाते हैं which is showing the direction of the reaction, कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ से हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। और सबसे मेन चीज, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन जो है इट शुड बी बैलेंस्ड। अब क्यों बैलेंस होनी चाहिए, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास ऑफ reactant is equal to mass of product, means the mass of a substance during a chemical reaction remains the same, कि total mass जो है वो same रहता है, mass can neither be created nor be destroyed. So the mass of reactant is equal to the mass of product, that is the law of conservation of mass, so it must be obeyed. So the chemical equation must be balanced. अब हम आगे देखें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन की टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती हैं, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस आ गई, एक आ गई अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड या इसे हम स्केलेटल भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
तो अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट के एटम्स का नंबर और रिएक्टेंट्स के एटम का नंबर सेम नहीं हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान मिल रहे हैं ये क्या आ गए, प्रोडक्ट्स। अब यहां पे अगर हम एटम्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 1। सो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं उनका नंबर प्रोडक्ट के एटम्स के साथ क्या है, सेम नहीं है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। दूसरी हमारे पास आ गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिएक्शन, कि इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। जैसे इसी एग्जांपल को हम दोबारा लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स वाटर। सो यहाँ पे हमने 2 लगा लिया और यहाँ पे भी हमने क्या लगा लिया, 2 लगा लिया। अब आप रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स को हम काउंट करते हैं। सो रिएक्टेंट्स में जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, अब 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट्स में भी अगर हम हाइड्रोजन देखें तो वो कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सो इन दिस chemical equation, number of atoms of reactants is equal to the number of atoms of product. Such equations are called as balanced chemical equation. So unbalanced में number of atoms जो है दोनों तरफ equation के same नहीं होता है, लेकिन balanced में क्या होता है, दोनों तरफ number of atoms क्या होता है, same होता है। Now unbalanced chemical equation, तो number of atoms of each element is not equal on both sides of chemical equation. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देख लिया इस एग्जाम्पल में कि एटम्स जो हैं वो दोनों तरफ ऑक्सीजन के सेम नहीं है, सो इट इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि अगर दोनों तरफ एटम सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नो नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, की इक्वेशंस को हमें बैलेंस कैसे करना है। तो पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे हमारे पास आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड H2। तो यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, वी डू हैव हिट एंड ट्रायल मेथड। एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि जिसमें हम इसको बार बार नंबर को चेंज करेंगे रफ में, और अल्टीमेटली जब वो एटम्स का नंबर सेम आ जाएगा तो फिर हम उसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने एक टेबल बना लिया जहां आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर लिख लिए हमने, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे, कि आयरन 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, 4 है। अब हम करेंगे कैसे इसको बैलेंस, कि सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे एक तरफ की जिसकी तरफ ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने क्या ट्राई करना है कि मैक्सिमम एटम्स जिस एलिमेंट के हों पहले उन्हें बैलेंस करो। जैसे आप उसे बैलेंस करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे बाकी वाले नंबर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। जैसे आयरन जो थे प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के नंबर सबसे ज्यादा थे, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 थे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन का नंबर 8 हो गया। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन का नंबर सेम हो गया, ऑक्सीजन का सेम हो गया, लेकिन आयरन का अभी भी ज्यादा है, प्रोडक्ट में आयरन 3 है, तो रिएक्टेंट में हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक इक्वेशन आ गई वो ये आ गई कि इनके नंबर सभी के क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जैसे 3Fe 4H2O टू फॉर्म Fe3O4 एंड 4H2। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा जिसके एटम्स हो उन्हें बैलेंस करो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे
hydrogen gas combines with nitrogen gas to form ammonia. हम कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में से ही ले रहे हैं, बैक एक्सरसाइज में आपके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस में उनको कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा हम उसे बैलेंस करेंगे जिसके एटम सबसे ज्यादा हैं। तो प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। आपने ये सारा रफ में करके देखना है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। तो इसे 6 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। सो 2 3 या 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जिसके एलिमेंट सबसे ज्यादा हैं पहले उसे बैलेंस करेंगे, ताकि बाकी वाले जो है वो आसानी से जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। हम दूसरी एग्जांपल वही ले लेते हैं जो हमने अभी की, कि उसमें क्या था हमारे पास, आयरन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, और हमें क्या मिला, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस किसका है, जो सबसे ज्यादा एटम है वो है ऑक्सीजन के। तो पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो पहले हम 1 है तो यहाँ पे हम लगाते हैं 4। अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 4 प्रोडक्ट में हो गया, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए 8 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 4 लगा लिया। अब हाइड्रोजन का नंबर भी 8 हो गया। अब पीछे क्या रह गया, आयरन, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, लगा लिया पीछे 3। सो 3 लगाने पे यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, 3। सो 3 एटम्स ऑफ आयरन, 3 एटम्स ऑफ आयरन, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि रफ में, और फेयर पे नहीं करेंगे हम, रफ में हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड्स। फार्मूला को चेंज नहीं करना है, जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। आपने 2 से करके देखना मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि जब तक हमारा नंबर जो है वो इक्वल ना आ जाए। सच मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। सो इस तरह से हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन आई थिंक बैलेंस करना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वहां पे दिए हुए हैं, आप उनको आसानी से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो हम ब्रैकेट्स में उनके साथ उनकी स्टेट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में आप G लिख सकते हो या अपवर्ड एरो, लिक्विड स्टेट के लिए L, सॉलिड स्टेट के लिए S, एक्वस के लिए अगर वो एक सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो AQ। ऐसे ही अगर प्रेसिपिटेट्स हैं तो उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं। सो दिस मेक्स द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इक्वेशंस हैं, आपको इनको बैलेंस करना है। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस के तौर पे ये इक्वेशंस दी हुई हैं, आप घर पे इनको प्रैक्टिस करें ताकि कैसे इनको बैलेंस करना है, और अपनी इक्वेशंस जो भी आप बैलेंस करते हैं उसे अपने टीचर को चेक करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपने सही तरीके से बैलेंस किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, ताकि वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो बैक एक्सरसाइज से, ताकि आप आसानी से जो है इन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखें। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।